Hello students. So in continuation of series of corporate laws, so today's topic of discussion is meetings. Generally हम सब लोग जानते हैं कि what is meant by meeting, but in bookish form or in Companies Act 2013's definition कि what is the meaning of meetings. So a meeting may be defined as gathering, assembly or any commingness, togetherness of any two or more persons for any lawful business. So हम इसमें कह सकते हैं कि lawful business means what? Lawful business means when two persons are entitled for a meeting if they are of sound mind, if they are not drunkard, if they are not convicted by any law for any offense and other type of punishment. So this is all about a valid definition of meeting. ये समझ में आ गया होगा. मीटिंग का मतलब होता है, जनरली हम मीटिंग कहते हैं कि जब हम आपस में गेट टुगेदर करते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ मीटिंग. बट इन कंपनीज एक्ट 2013 मीटिंग मीन्स व्हाट? मीटिंग मीन्स कमिंग टुगेदरनेस फॉर एनी लॉफुल बिजनेस. आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप उसमें अपना लॉफुल एग्जिस्टेंस आपका होना चाहिए कि व्हाट इज द मेन बेसिक पर्पस ऑफ योर बिजनेस, व्हाट इज द मोटो ऑफ बिजनेस एंड व्हाट बिजनेस विल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, है ना? व्हाट विल बी द सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द बिजनेस दैट यू आर गोइंग टू बी open. Now the next topic comes kinds of meetings. So here I want to discuss with you that meetings can be defined into two categories. Number one is general meeting and number two is class meeting. General meeting जो है वो as such Companies Act में कहीं भी defined नहीं है, Companies Act 2013 में. लेकिन ये हमें बताती है कि कोई भी ऐसा मेंबर कंपनी का जिसके पास वोटिंग राइट्स हैं, वो they are entitled to attend that meeting. So in Companies Act 2013, a book definition of general meeting is general meeting is not defined anywhere in Companies Act as such, but as per Companies Act 2013, it signifies any meeting which all other members of a company who have a voting right to attend the same. Now the question arises, what is meant by class meetings? So it is a second type of meeting. So class meeting are held to, but generally they are conducted by passing special resolution, which are binding only on the members of the class of shares concerned, and the members of the class alone may attend and vote at the meeting. It means जिन persons को specific class जिनका उस shares में है, so they are entitled to attend that meeting. अब now the important and very useful question arises, what is mean by AGM? AGM stands for Annual General Meeting. So Companies Act 2013 के सेक्शन 96 में AGM को बताया गया है. AGM जनरली क्यों कंडक्ट करते हैं? देखो, AGM वेदर कंपनीज प्राइवेट कंपनीज पब्लिक, AGM कंडक्ट करना बहुत जरूरी होता है बिकॉज जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस होते हैं वो AGM में पास होते हैं. AGM में अगर आप देखें तो देखो, AGM में सबसे बड़ी बात है कि कोई भी जो कंपनी है उसके अकाउंट्स जो है वो AGM में डिसाइड होते हैं. बैलेंस शीट्स कंपनी की AGM में डिसाइड होती है. उनका इंटरप्रिटेशन कि आपकी लायबिलिटीज अगर ज्यादा है तो व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू ओवरकम दिस कंडीशन, और अगर आपकी एसेट्स ज्यादा है तो इट कैन बी अ गुड रिमार्क फॉर योर बिजनेस, एंड द रिपोर्ट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स. So this is ingredient of business reports of AGM. Declaration of dividend कि how much dividend is to be declared for dividend holders, and appointment of director in place of retiring directors कि अगर कोई भी डायरेक्टर रिटायर हो रहा है तो उसके प्लेस पर कौन सा डायरेक्टर्स आप अपॉइंट करोगे और उनका what will be the remuneration. So these all are the important points that can be decided in annual general meeting that can be defined in section 96 of the Companies Act 2013. अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर हम बुक फॉर्म में कहें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, हाँ, जो एनुअल जनरल मीटिंग की अगर हम बात करें तो AGM को अगर हम एब्रिविएशन फॉर्म में बोले तो मतलब एनुअल जनरल मीटिंग को, सो वी कैन डिस्कस दिस मीटिंग एज AGM मीटिंग. सो एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 96 में इसके बारे में बताया गया है. अगर बुक फॉर्म में इसकी डेफिनेशन देखें तो हम बोल सकते हैं कि एवरी कंपनी, वेदर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, हैज होल्ड अ पीरियडिकल जनरल मीटिंग of its member annually for the purpose of transacting its routine ordinary business, and such meeting is called AGM. Now term comes extraordinary meeting. So extraordinary meeting जो है वो Companies Act की section 100 में इसके बारे में बताया गया है. So extraordinary meeting means what? Extraordinary meetings मतलब it is not ordinary, it is extraordinary. एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग जो है हम जनरली कॉल करते हैं जब कोई स्पेशल हमें रिजोल्यूशन पास आउट करना होता है या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहां पर हमें डिसीजन लेना बहुत जरूरी हो जाता है.
सो अगर इसको एक लैंग्वेज फॉर्म में देखें, एक इसको डेफिनेशन फॉर्म में देखें, so as per section 100 of the Companies Act 2013, all general meetings of a company other than statutory meeting and other than annual general meeting are called extraordinary general meeting. ये आपकी statutory meeting नहीं है, ये आपकी annual general meeting नहीं है, उनके beyond extraordinary meeting है. So this is all about extraordinary meeting. लेकिन जनरली कॉल क्यों करते हैं और कौन कॉल करता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग जो है हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू कॉल होती है एंड वॉलंटरी कॉल होती है व्हेन दे विश टू ट्रांसैक्ट सम स्पेशल और अर्जेंट बिजनेस. मैंने भी बताया था कि कोई स्पेशल बिजनेस आपको लोगों के साथ डिस्कस करना हो, कंपनी के मेंबर्स के साथ डिस्कस करना हो, या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन व्हिच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द सेकंड वेलफेयर ऑफ द कंपनी. सो दिस टाइप ऑफ मीटिंग इज जनरली कॉल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ये हम इसके बारे में हमने ये सीखा. एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा और स्टेचुटरी जनरल मीटिंग के अलावा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग भी एक तरह की मीटिंग की टाइप ही होती है. इसके अलावा अगर मीटिंग्स के टाइप्स देखें तो डिबेंचर होल्डर्स की भी मीटिंग होती है, मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी मीटिंग होती है. तो ये कुछ टाइप है मीटिंग्स के. तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मीटिंग. अब बात आती है कि क्या मीटिंग का कोई नोटिफिकेशन हमको इसके मेंबर्स को देना होता है? यस. सो नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग के बारे में सेक्शन 101 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है कि अगर कोई भी कंपनी का ऐसा रजिस्टर्ड मेंबर जो है तो उस मेंबर को इसका नोटिफिकेशन देना होता है कि दिस टाइप ऑफ मीटिंग इज बीइंग कॉल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. लेकिन वो मेंबर अगर इंडिया में है तो उसको उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पर इंफॉर्मेशन आपको सेंड आउट करनी पड़ती है. कंपनी के जो ऑडिटर्स हैं उनको और कंपनी का जो भी डायरेक्टर है उसको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है. सो नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग मींस एज पर सेक्शन 101 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 every member at his registered office, the second one auditors of a company, and the third one every directors of a company. Now the term comes कि what are the essential rules which are pertaining to notices. So एक चीज बता दूं कि ये जो मीटिंग होती है इसको कन्वीन करने का एक प्रॉपर पर्पस होना चाहिए एंड वो पर्पस जो है वो उन पर्सन्स तक जाना चाहिए those who will attend the meeting. So और वो जो पर्पस है और जो पर्सन्स है उनको भी नोटिफिकेशन जो है प्रॉपर फॉर्मेट होता है, प्रॉपर पर्सन्स को हु आर ऑथराइज्ड टू कन्वीन द मीटिंग उनको ये सेंड आउट करना चाहिए. सेकंड, अभी मैंने बताया था कि जो भी हमारे आर्टिकल्स ने जो चीज डिटरमाइन कर रखी है इस नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग, तो उसका वो प्रॉपर फॉर्म और प्रॉपर मैनर होना चाहिए जिसमें कि आप ये नोटिस सर्कुलेट करोगे. नोटिस जो है वो एग्जैक्ट प्लेस, एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट टाइम पर आपको देना चाहिए. नोटिस एब्सोल्यूट होना चाहिए, उसको कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए. अगर वो कंडीशन उस पर रहती है तो नोटिस विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड नोटिस. नेक्स्ट आता है कि कंपनी का कोई भी मेंबर है जो रजिस्टर्ड मेंबर है उसको ये नोटिफिकेशन हमको देना चाहिए. नोटिस जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि 21 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नोटिफिकेशन दे देना चाहिए और नोटिस जो है वो साइन होना चाहिए बाय द साइड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो ये कुछ स्पेसिफिकेशन रूल्स हैं. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. Must be given by proper persons who are authorized to convene the meeting. Notice must be given in the form and manner required by the articles. Third one is notice must specify the event, place, date and time of meeting. Notice must be absolute. No condition should be there while sending the notice. Notice must be sent to every member of the company at his registered address. Notice period should not be less than 21 days and notice should be signed and issued by board of directors. So this is all about today's class. Thank you.